Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let us continue. Once again, good morning. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. So, so what was the last topic in computer system organization? Anyone please tell? What was the last topic? No response. So we discussed about utilities. Yes, you are saying right. Yesterday I have discussed about utilities, different types of utility software. As for example, what are these? Disk defragment, Text editor, any text editor. disk utility, compression utility, backup Yes, utility, antivirus. yes, very good. These software are comes under utility software. And after that क्या मैंने डिस्कस किया था? Different types of operating system. Single user operating system, multi user operating, Multi. then real time operating system, then याद कीजिए कल ही तो मैंने बताया है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड distributed operating system. What are the basic differences between a single user and multi user operating system? Sir, in single user operating system, a single person can operate it at a time, but in multi-user, multiple users can operate it. Yes, in multi user operating system at a time multiple users can operate it. And best example of multi user operating system are, just a minute wait, आप ये Udit Das, can you hear me? Udit, Dhruv Kumar, Yes, sir. yes, give some example of multi user operating system. कल आपने क्लास किया है? हाँ सर, किया था। फिर तो कल ही तो मैंने डिस्कस किया, एक दिन में अगर आप भूल जा रहे हैं तब फिर याद है या नहीं? जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए ना, टाइम नहीं है। नहीं। प्रज्ञा दास, यस सर। यस आप बताइए। सर एक बार रिपीट करिए। मतलब आप क्लास नहीं कर रहे थे, ये एकदम क्लियर है। क्वेश्चन में 2 या 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। Give some examples of multi-user operating system. Yeah, अनिकेत प्लीज वेट, मैं पूछूंगा। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. बस मैं देख रहा हूँ आपके क्लास केवल 4 या 5 बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स केवल आप कनेक्टेड है, बस क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में तो जो कुछ क्लियर नहीं होता। फिर मैं सबका कैमरा ऑन करवा के फिर क्लास लूंगा, आज ये ऑप्शन है। यस, नवनीता बिस्वा, ये लेफ्ट द मीटिंग, वाह वेरी गुड। यस सुज्ञान प्लीज कंटिन्यू। सर यूनिक्स होगा एक एग्जांपल सर, यस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। सम मोर सर एग्जांपल। वीएमएस है सर, वर्चुअल Linux. मेमोरी सिस्टम। यस लिनक्स, यूनिक्स। सर उसने VMS भी बोला जो मैंने कल बोला था, वर्चुअल सर मेमोरी सिस्टम। मेन फ्रेम ओएस। क्या होता है मेन फ्रेम ओएस? थोड़ा सा सर एलिब्रेट कीजिए।
सर मेन फ्रेम ओएस के बारे में मेरे को पता नहीं, बट मैंने पढ़ा है सर, एक टाइप ऑफ मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, उतना डीप नहीं पढ़ा। Means according to you, this OS comes under multi-user operating system, ना? हाँ सर। ठीक है, मेनली आप दो नेम याद रखिएगा, लिनक्स एंड यूनिक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आइए, क्या क्या आ जाएगा? MS DOS. Windows. यस, विंडोज एनी वर्जन। Sir, Mac OS. ओके, MS DOS जागृति ने बताया, जागृति दत्ता ने। DOS स्टैंड्स फॉर बता सकता, और MS स्टैंड्स फॉर मतलब कंप्लीट बता पाएगा कोई? जागृति आप ही बताइए। Sir, can I? Sir, MS तो Microsoft और DOS disk operating system. Yes. Finally, you can say Microsoft Disk Operating System. Mainly, there are two types of interface. One is CUI, Command User Interface, and second one is GUI, Graphical User Interface. ये दो नेम से आप अवेयर हैं, आपने सुना है? Yes sir. Yes, sir. तो MS DOS जो है आपका Microsoft Disk Operating System is based on Command User Interface. Means इसमें क्या होगा, for each task, for each work, you have to give a certain syntax, means certain instruction in the form of command. कभी रन पे cmd लिख कर ये command.com खोला है आपने? Yes देखा होगा। sir. Yes, sir. कुछ क्वेरी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मान लो सपोज यू वांट टू डिलीट ए टेम्पोररी फाइल, देन हम लोग लिखते हैं ना %temp%, या फिर हम डायरेक्ट विन वर्ड लिखते हैं तो हमारा Yes sir, वो फाइल खुलता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाता है। जस्ट मिनट में दिखा रहा हूँ, प्लीज ये टाइम शेयरिंग स्क्रीन। गूगल मीट इंटरफेस इज विजुअल टू ऑल। Yes sir. Yes, sir. देखिए मैंने सर्च बार पे रन लिखा, ठीक है, रन लिखा मैंने। डॉस को मुझे ओपन करना है, किस कमांड को हम लिखेंगे? cmd लिखेंगे ना, अगर शॉर्ट वे में अगर स्टार्ट करना हो तो। Yes sir. आप स्टार्ट में भी जाके कर सकते हैं, यहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं, बट आप शॉर्ट वे में क्या, रन में जाके टाइप कीजिए। रन एक आपका ऐप है, इसमें मैंने ओपन किया, इससे भी ले सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में आप cmd लिखिए, मीन्स यू वांट टू ओपन MS DOS। मैंने ओके किया, देखिए आपका यहाँ ओपन हो गया नहीं है, ये इंटरफेस दिख रहा है। Yes, sir. Yes. ये मैंने MS DOS ओपन किया, यहाँ जो भी वर्क होगा वो आपका, इसके लिए आपको एक सर्टेन इंस्ट्रक्शन देना होगा, सिंटेक्स देना होगा। सपोज इफ आई वांट टू क्रिएट ए न्यू फाइल इन MS DOS prompt, इन MS DOS prompt, देन आप क्या लिखेंगे? कॉपी कॉन फाइल नेम देन कंटेंट्स F6 से सेव करेंगे, इस टाइप से बनता है, और डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगेन देखिए मैं इसमें रन में ही अगर इफ आई वांट टू ओपन MS वर्ड, देन सिंपली आपके एक शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? बिन वर्ड लिखेंगे। ये एक exe फाइल है जो MS वर्ड को ओपन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दिस बिन वर्ड exe फाइल इज रेस्पॉन्सिबल टू ओपन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। देखिए मैंने ओके किया, MS वर्ड ओपन हो रहा है। Yes sir. इस टाइप से बहुत सारे सर्टेन कीवर्ड्स आप बोल सकते हैं, उसको आप रन पे लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। इज दिस PDF इज विजुअल टू ऑल? Yes sir. तो ये केवल आप नेम याद रखिएगा, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, डिफरेंस एंड एग्जाम्पल, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, बाकी का केवल नेम आपको याद होना चाहिए। देन लेट अस कंटिन्यू टू नेक्स्ट फाइल, CSO3
1.2 इसमें आते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, मेजर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके सिलेबस में है। तो दीज आर द सम फंक्शंस, क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन क्या है, डिफिनीशन तो आपको क्लियर है, लेकिन उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग उसका सम फंक्शंस भी है, ये आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट में क्या है, डिवाइस मैनेजर, then memory manager. As the name suggests, device manager means what? It communicate with hardware and the attached devices. What do you mean by this statement? This क्या मीनिंग आ रहा है इससे, डिवाइस मैनेजर के में जो ये जो लाइन लिखा है इससे क्या मीनिंग आया आपको समझ में? It communicate with hardware and the attached device. What are the Sir, attached? attached devices means वो mic, headphone, Yes. sir, camera, webcam. Yes. Attached device means peripheral devices. मीन्स आपके कंप्यूटर के सराउंडिंग में जो है हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हैं, दीज आर कॉल्ड अटैच्ड डिवाइस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका डिफरेंट रोल है। फर्स्ट रोल क्या है, ये डिवाइस मैनेजर है, मीन्स बेसिकली इट कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर एंड द अटैच्ड डिवाइस। सेकेंड पॉइंट, मेमोरी मैनेजर, एज द नेम सजेस्ट मीन्स क्या, मेमोरी को मैनेज कर रहा है। दैट मीन्स क्या, इट मैनेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। डिफरेंट ऑफ मेमोरी मीन्स क्या क्या हो जाएगा, internal memory and external memory. That means what, primary memory and secondary memory. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रोल मैनेजर, ये बहुत सारा रोल करता है। फर्स्ट में डिवाइस मैनेजर कर रहा है, देन मेमोरी मैनेजर कर रहा है, तो नेम से ही आपका क्लियर है हो रहा है कि ये किस टाइप का रोल परफॉर्म करेगा। एनी डाउट? नो सर। आपको अकॉर्डिंग टू पॉइंट थोड़ा थोड़ा दो लाइन आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रीफली एक्सप्लेन। देन प्रोग्राम मैनेजर, that means provides a structure or format for accessing an application. समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग करते हैं? आपने जैसे ही आपने एक नया कंप्यूटर लाया, अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या आपका इंटरेक्शन होगा हार्डवेयर से? इट इज नॉट पॉसिबल। देन आप क्या करते हैं, आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम इन एनी वर्जन इंस्टॉल करते हैं। देन क्या होता है, आफ्टर दैट आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि आप डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं या रिट्रीव कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट एक और पॉइंट है इंटरफेस मैनेजर, दैट मींस व्हाट, इट प्रोवाइड्स ए यूजर इंटरफेस। किस टाइप का इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, टू इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। तो सारे जो टर्म्स है वो सिंपल है, केवल अगर आपको नेम याद रहता है, डिवाइस मैनेजर, मेमोरी मैनेजर, इंटरफेस मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, एक टास्क मैनेजर भी है, फाइल मैनेजर भी है, नेम से ही क्लियर हो जा रहा है। टास्क मैनेजर का क्या रोल होगा, इट इनेबल यूजर टू मैनिपुलेट प्रोग्राम एंड डेटा। मतलब क्या करेगा, गेस कीजिए। फाइल मैनेजर में क्या होगा, इट मैनेज द फाइल्स, फोल्डर्स एंड डायरेक्टरी सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर। का पाएगा Sir, कौन सा? these two, टास्क मैनेजर एंड फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर मतलब हमारा क्या, विंडो एक्सप्लोरर। आपके देखिए कंप्यूटर में विंडो एक्सप्लोरर रहता है, जैसे देखिए मैंने ये आपका फाइल मैनेजर या फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ है ना लिखा हुआ फाइल एक्सप्लोरर, इज इट विजुअल? Yes, sir. यस इससे सर। क्या, इसका क्या रोल है, इससे आप डिफरेंट टाइप्स के लोकेशंस को, हार्डवेयर का जो भी लोकेशन है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, उसमें फाइल और फोल्डर्स को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वहां पर कोई फाइल प्लेस कर सकते हैं। मतलब ये पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है आपको आपके डिफरेंट फाइल एंड फोल्डर्स को एक्सेस करने के लिए। आपका मोबाइल में भी एक, आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका एक वर्जन रहता है, फाइल मैनेजर नाम से एक ऐप है ना। Yes, sir.
उसमें क्या रहता है बेसिकली आपके जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स आपके इंटरनल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर है उसको आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। सिमिलरली टास्क मैनेजर में क्या होगा? सर टास्क मैनेजर मतलब वो जितना भी प्रोग्राम या डाटा होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वहां से। यस, टास्क मैनेजर में बेसिकली क्या होगा, जो भी आपने अभी तक प्रोग्राम फाइल्स या जो भी टास्क ओपन कर रखा है राइट नाउ, आपका कंप्यूटर के बैकग्राउंड में ऑलरेडी रनिंग में है, डिफरेंट टाइप्स टास्क रनिंग में रहता है। इसको आप कंट्रोल ऑल डिलीट से भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देखो कंट्रोल ऑल डिलीट मैंने प्रेस किया, खैर आपको ये दिख नहीं रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है ये टास्क टास्क मैनेजर दिखा अभी? यस सर। देखिए मैंने कंट्रोल ऑल डिलीट एक 3 बटन एक साथ मैंने प्रेस किया, देन टास्क मैनेजर मैंने खोला। देखिए हमने क्या टास्क अभी कंप्यूटर पे मैंने ओपन कर रखा है, उसका बैकग्राउंड में चल रहा है। मैंने क्या क्या ओपन किया, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, बैकग्राउंड प्रोसेस में ये सब चल रहा है बहुत सारा, देख रहे हैं। परफॉर्मेंस में बता रहा है किसका क्या परफॉर्मेंस है। इज इट विजुअल टू ऑल? यस सर। Yes, sir. देख रहे हैं मेमोरी का पोजीशन, डिस्क का पोजीशन, वाईफाई का क्या आ रहा है, सबका पूरा बता रहा है इंटरनेट। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, मैं तो आपको रियल प्रैक्टिकल दिखाया कि टास्क मैनेजर का क्या रोल है। कभी कभी क्या होता है हमारे कंप्यूटर कोई लार्ज ऑपरेशन, कम्प्लेक्स ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं और मल्टीपल टास्क ऐसे एट ए टाइम ओपन कर देते हैं और रिस्पॉन्ड प्रॉपर वे में नहीं होता है। इन दैट केस क्या कंप्यूटर पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब हैंग हो जाता है। उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? दैट मीन्स योर सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इन दैट केस क्या करते हैं आप, सर्टेन कुछ जो टास्क जो ज़्यादा स्पेस लिया है उसको आप क्लोज करते हैं। उसमें क्या करते हैं आप, सेलेक्ट करते हैं उस टास्क को और डिलीट कर देते हैं, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। एनी डाउट? नो सर। जैसे देखिए यहाँ गूगल क्रोम ये है आपका 223 MB लिया हुआ है, ये आगे पीछे मतलब ये फ्लक्चुएट हो रहा है, तो जिसका ज़्यादा रहेगा रिस्पॉन्डिंग नहीं रहेगा उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, या इन टास्क कर सकते हैं, सॉरी डिलीट नहीं होगा, इन टास्क होगा। मैंने राइट क्लिक करके यहाँ किया ना, तो मतलब ये आपका टास्क आपका डिलीट हो जाएगा। चलिए क्लोज करता हूँ मैं। देन नेक्स्ट नेक्स्ट ये है आपका नेटवर्क मैनेजर। इट मींस व्हाट, एज द नेम सजेस्ट नेट, ये क्या करेगा, इट कंट्रोल्स द नेटवर्क। दैट मींस इट प्रोवाइड बेसिक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर फॉर लैन एंड इंटरनेट। समझ में आ रहा है? यस सर। आपके यस सर। डेस्कटॉप पे भी एक रहता है माई नेटवर्क, इस टाइप से एक नेम रहता है, वहां से आप देख सकते हैं अगर आपका लैन किया हुआ है तो क्या क्या अलग अलग डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड है उसका पूरा एक यहाँ नेटवर्क दिखता है। देखिए विजुअल उड़ा नहीं है दिस वन नेटवर्क। मैंने इसको ओपन किया, अभी हमारा कुछ भी नहीं है, टर्न ऑफ किया हुआ है इसलिए यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। इसको टर्न ऑन करेंगे तो फिर हमारा इन डेट केस दिखेगा, बट अभी ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हमारा एक सिंगल कंप्यूटर ही कनेक्टेड है। मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ। देन एट लास्ट सिक्योरिटी मैनेजर। Security manager means what? It provides basic security to your computer or device. A smart operating system also provides a minimal security to the computer system through authorization. That means यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर आप अपने कंप्यूटर में भी डाल सकते हैं ना, कंट्रोल पैनल के यूजर अकाउंट में जाकर आप गेस्ट अकाउंट, एडमिन अकाउंट, स्टूडेंट अकाउंट ऐसे बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल और नॉट? यस सर। Yes, sir. आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फिर मैं क्लास ही में क्लोज कर दे रहा हूँ। डिस्कनेक्ट हो जाए क्या? No, sir. No, no, sir. मैं वन साइडेड से बोल रहा हूँ और आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। 34 स्टूडेंट्स कनेक्टेड और रिस्पॉन्ड कुछ नहीं आ रहा है। लास्ट वाला टॉपिक कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? सिक्योरिटी मैनेजर।
सर सिक्योरिटी मैनेजर मतलब एट टाइम प्लीज वन स्टूडेंट बोलेंगे। सर हम लोग प्रोटेक्शन के लिए जो यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं वही तो है प्रोटेक्शन। यस और कोई नहीं खोल पाया इसको। हाँ, वहाँ थोड़ा सा अपने अकाउंट को सिक्योर्ड कर सकते हैं एक पासवर्ड देकर, और वो सेटिंग आपका कंट्रोल पैनल में यूजर अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। और क्या सिक्योरिटी होगा? आपने नाम सुना फायरवॉल का, FIREWALL। यस सर। आपका ईच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे ही OS आप इंस्टॉल किए हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें इनबिल्ट फायरवॉल रहता है। ये भी आपका कहीं ना कहीं अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है। आपका एंटीवायरस तो आप अलग से डाल ही रहे हैं, बट आपका OS में भी फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर वैलिड ऑथराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ एक फायरवॉल रहता है जिसको आप इनेबल डिजेबल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आई थिंक आपको इसमें स्लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या हमें क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाएंगे ना एनी 4 पॉइंट्स? कोई जरूरत नहीं सबको लिखने का, यू कैन राइट एनी 4 पॉइंट्स। हैव यू एनी डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. देखिए, बेस्ड ऑन देयर यूजर इंटरफेस may be categorized as command user interface or character user interface and graphical user interface। इसमें आपका MS-DOS आ जाएगा और GUI में आपका विंडो आ जाएगा इन एनी वर्जन। थोड़ा सा और डिटेल्स में आते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ। कमांड यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दिस टाइप ऑफ इंटरफेस requires user to type each instruction on its prompt, मतलब DOS prompt, to send request to computer। User must remember each command with proper syntax to perform its operation। जो मैंने MS-DOS में आपको भी करके दिखाया था। इस टास्क के लिए आपको एक सर्टेन कमांड वो आपको याद रखना होगा, देन तभी वो फाइल क्रिएट होगा या फाइल को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। It is not very easy and user friendly। Examples of this type of interface by DOS means MS-DOS, disk operating system. It is still available with Windows as CMD program where we can type the DOS commands। यही तो मैंने बताया है। कोई डाउट है आपको? नो सर। No, sir. नो सर। कंटिन्यू करते हैं। कंपाइलर इंटरप्रेटर ऑलरेडी हो गया है आपका। तो आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन से जो बेसिक कंप्यूटर का जो सिलेबस था वो ऑलरेडी आज कंप्लीट हो गया एंड अभी टाइम है 10 मिनट है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक दैट इज बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा। इज दिस PDF इज विजिबल टू ऑल? नो सर। नाउ No, sir. No, sir. जस्ट मिनट, एक्चुअली हमने प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दिया था उस समय। नाउ इट इज विजिबल? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फिर अभी जो मैंने देखा है ये भी आपको विजुअल नहीं हुआ था और आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। जस्ट ए मिनट, दिस वन अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ना वर्बली, ये वाला स्लाइड है, मैं अपलोड भी कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये विजुअल मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया था अभी। यस सर। ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप देख लेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे बूलियन अलजेब्रा। हैव यू एनी आइडिया अबाउट बूलियन अलजेब्रा? आपके सिलेबस में है, देखिए बूलियन अलजेब्रा।
जस्ट ए मिनट प्लीज वेट। सिलेबस विजुअल हो रहा है? यस सर। देखिए फर्स्ट यूनिट फर्स्ट डे मैंने फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इट कैरीज 10 मार्क्स ओनली। और ये आपका टर्म 1 का सिलेबस है। देखिए इसके डिटेल्स में आते हैं। यही था ना, ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, गौर से देखिएगा। ये सारे टॉपिक यहाँ तक हमने ना अभी कंप्लीट हो गया है ना, जो भी मैंने येलो किया है आप। यस यस सर। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी मैंने बता दिया। ओएस यूजर इंटरफेस बता रखा है, ओएस का मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बुलियन लॉजिक। इसमें आपको क्या पढ़ना है? अबाउट द गेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट। क्या क्या है आपका? एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, देन ट्रूथ टेबल, व्हाट इज ट्रूथ टेबल, what is Boolean logic, De Morgan law, and different types of logic circuits. Have you any idea about Boolean logic? सर बुलियन लॉजिक सिस्टम है वो सर वो सर मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेटरिक्स का पार्ट को इन्वॉल्व करता है, जिसमें 0 और 1 के हिसाब से कॉम्बिनेटरिक्स के हेल्प से कोड किया जाता है। ऊपर से उसमें ये सर इसका सेमीकंडक्टर्स का और उसका नॉलेज दिया जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम में सेमीकंडक्टर को कंडक्ट मतलब कि फॉर्म किया जाता है, और उसमें अलग अलग टाइप के मतलब कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर सर्किट्स को जोड़ के, और उन्हीं के हिसाब से सर उसका एक ट्रुथ टेबल बनता है जिसमें सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है और उसे अलजेब्रा में यूज किया जाता है। Yes, very good, excellent. Any other student? अरमान ने बिल्कुल सही बताया। Any other student? जो भी आप थोड़ा सा बताइए, मैं तो आगे बताऊंगा ही, लेकिन मुझे भी एक ब्रीफ मिलेगा कि आपका क्या नॉलेज है। सर आप क्या बोले तो फिर रिपीट करेंगे? Have you any idea about Boolean logic, Boolean algebra? आपका नया टॉपिक है ये आज, Boolean logic. नो आइडिया मीन्स बाकी को कुछ भी पता नहीं है। चलिए प्रॉब्लम, नोट्स देखते हैं। पीडीएफ विजुअल है ना? यस सर। यस सर। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है बुलियन अलजेब्रा में। बुलियन लॉजिक दैट इज आल्सो नोन एज बुलियन अलजेब्रा वाज डेवलप्ड बाय वन मैथमेटिशियन, नेम था उनका जॉर्ज बुली। ठीक है। लेटर बुलियन लॉजिक हेल्प्ड इन सॉल्विंग मेनी बिग प्रॉब्लम। These logics also help in developing circuits. सर्किट से अभी हम लोग डिटेल्स में आएंगे, सब कुछ क्लियर होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे आप सुन लीजिए। कंप्लीट लॉजिक इज बेस्ड ऑन यस और नो। मीन्स जो भी लॉजिक बेस्ड होगा वो क्या होगा, इधर यस होगा या नो होगा, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको पता है? ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। 0। जीरो। ट्रू मीन्स हाई वोल्टेज, फॉल्स मीन्स लो वोल्टेज। तो आपका बुलियन अलजेब्रा भी है, वो भी आपका बेस्ड है ट्रू एंड फॉल्स पे, मतलब 0 एंड 1 पे। और बुलियन अलजेब्रा को जो इन्वेंट किया था एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज बुली, उन्होंने इन्वेंट किया था। कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसमिट्स सिग्नल ऑन हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, दैट मीन्स व्हाट, ये 1 और ये क्या हो जाएगा आपको 0, यही कहा जा रहा है ना। which can be denoted by true or false and with which we can develop its circuit. In this chapter we will learn these logics. अब डिटेल्स में आइए। पहला इसमें ऑपरेटर्स कुछ पढ़ने हैं, देन सर्किट्स पढ़ना है। ऑपरेटर में पहले हम लोग आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड आते हैं। एंड मीन्स व्हाट, गेस कीजिए। एक होता है एंड ऑपरेटर, देन एक और ऑपरेटर होता है, एक नॉट ऑपरेटर रहता है।
क्या इसमें डिफरेंसेस है? व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंड और ऑपरेटर? जो भी आपको आ रहा है समझ में, थोड़ा सा गेस कीजिए, मैं तो बताऊंगा। सर एंड ऑपरेटर का मतलब सर बोलना चाह रहा है कि इसके साथ ये ऐसे बोल जाता है, और में ये नहीं तो वो, ऐसे करके बोलना चाह रहा है सर। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा और मैं एलिब्रेट कर रहा हूँ। एंड मीन्स ये डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, और उस मल्टीप्लीकेशन के लिए आप एक सिंबल यूज करेंगे, वो सिंबल होगा डॉट। सिमिलरली और ऑपरेटर के लिए आप क्या डिनोट करेंगे? और ऑपरेटर मीन्स एडिशन, मीन्स आप वहां पर क्या करेंगे? प्लस। एंड बोथ ऑपरेटर्स के लिए, मतलब एंड और के लिए एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स और 2 कंडीशन आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 कंडीशन रिक्वायर्ड है। इसमें क्या होगा? अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉजिक ऑफ एंड ऑपरेटर, इसमें क्या लॉजिक लगेगा? मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या होगा? दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, वो 1 है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू होगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। 0 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आउटपुट तो 0 ही होगा ना। अगर एक वैल्यू 0 है तो इन सर्कमस्टांसेस आउटपुट विल भी क्या होगा? 0, चाहे वो 1 0 हो या 0 1 हो या 0 0 हो। अगर दोनों वैल्यू आपका 1 1 है, इन दैट केस इट विल गिव आउटपुट 1। आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। सिमिलरली और ऑपरेटर में क्या होगा? इसको आप डिनोट करेंगे प्लस से सिंबल में, देन इसका मतलब हो रहा है एडिशन, मतलब एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन इट विल गिव आउटपुट ट्रू। मतलब ये एडिशन हो रहा है, मीन सिंपल प्लस करेंगे तो अगर कोई भी एक वैल्यू अगर 1 है, डेट मीन्स क्या होगा? फाइनल वैल्यू भी क्या आएगा आपका? 1 होगा। ये 1 1 भी फिर आप बोलेंगे सर 1 1 को भी आपने क्या किया है? 1 लिख दिया है तो 2 होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्या क्यों नहीं होता है मैं कल डिस्कस करूंगा। अभी आप यहाँ सिंपल एडिशन हो रहा है तो 0 + 0 क्या होगा? 0 ही होगा ना। और कोई एक वैल्यू अगर ट्रू है, डेट मीन्स 1 है, देन इन डेट केस क्या होगा? फाइनल आउटपुट आपका 1 होगा। तो 0 + 1 1, या 1 + 0 भी 1 होगा और 1 1 भी 1 होगा। ये आपके 2 कंडीशंस में भी सेम होगा, या 3 कंडीशंस भी है तब भी यही लॉजिक लगेगा। मींस फाइनली यू कैन से सर इसमें एंड गेट में तो इसे ऑपरेशनल बनाने के लिए दोनों जो वैल्यू है उन दोनों को ही पॉजिटिव होना पड़ेगा या फिर हाई वोल्टेज होना पड़ेगा, बट और में कोई एक वैल्यू भी आए तो भी वो सर्किट काम करेगा। यस बिल्कुल। ये डिटेल्स में हम लोग और अभी आएंगे। तो एंड समझ में आया? थोड़ा सा समझ में तो आया होगा ना आप लोगों को? यस सर। इसका यहाँ देखिए वेन डायग्राम भी यहाँ बताया है। इसमें क्या है? ऑन एंड ऑपरेटर, ट्रुथ टेबल एंड वेन डायग्राम्स आर एज अंडर। ट्रुथ टेबल की आप कल डिटेल्स में देखेंगे। वेन डायग्राम में देखिए, इसमें मैंने क्या बताया? एंड वाले में बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू देन इट विल गिव आउटपुट। तो यहाँ आपका दोनों कंडीशन ट्रू है तभी तो आउटपुट आ रहा है 1। अगर एक कंडीशन भी अगर 0 हो गया तो फाइनल आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। तो एक कंडीशन आपका x है और एक y है, तो एंड क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब बोथ कंडीशन ट्रू है, तो दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया क्या है? यही वाला पार्ट तो है ना। आ रहा है समझ में? हाँ सर, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप मैथमेटिक्स में इंटरसेक्शन बोलते हैं शायद। यस सर। यस सर। तो ये आपका एंड वाला पार्ट हुआ। मतलब दो कंडीशन है, इट डजंट मैटर, एटलीस्ट 2 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड and both condition, if both conditions are true then it will give output. Any doubt? नो सर। इसका ट्रूथ टेबल देखिए कैसे बनेगा। आप ये भी एज्यूम कर लीजिए मैंने 2 वेरिएबल लिया है, एक या 2 इनपुट लिया है मैंने, एक x और एक y। ठीक है, तो वैल्यू अगर x का 0 है और इसका भी 0 है तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या होगा? इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर इसको आप लिख सकते हैं x इन क्रॉस y मीन्स x डॉट वाई। एज यू नो डैट क्या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल लास्ट वाला केवल आपका 1 आएगा। रिजल्ट विल बी 1 ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स विल बी 1, अदरवाइज रिजल्ट विल बी ऑलवेज बी 0। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है आपको? यस सर।
अब एक चीज और गौर कीजिए, मैं 2 मिनट और लूंगा। यहाँ 2 इनपुट्स लिया है, हाउ मेनी इनपुट आर देयर, ओनली 2 इनपुट्स, दिस वन एंड दिस वन, और ये रिजल्टेंट वैल्यू है, दिस वन, ये रिजल्टेंट वैल्यू है। तो 2 इनपुट्स का वैल्यू मैंने यहाँ 0 0 ही क्यों दिया, यहाँ 0 1 क्यों दिया, क्योंकि इंटरनली क्या हुआ है, इसको मैं ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, और इसका मैंने बाइनरी वैल्यू प्लेस किया है। आप गौर कीजिए, 0 का बाइनरी वैल्यू क्या होगा, 0 0, 1 का बाइनरी वैल्यू क्या होगा, 1, राइट साइड से लिखते हैं, इधर लेफ्ट में 0 देते हैं एडजस्ट करने के लिए। 2 का बाइनरी वैल्यू क्या होगा, 2 डिसिमल नंबर है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, नेक्स्ट वाला, बाइनरी टू डिसिमल, डिसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। 2 को मैंने यहाँ डिजिटल नंबर है, इसको मैंने बाइनरी में लिखा, 2 का बाइनरी में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 0, तो वही 1 0 मैंने यहाँ लिखा है। देन 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 1, इसलिए 1 1 लिखा गया है। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो शायद कुछ स्टूडेंट को हो सकता है पता होगा। बेसिकली क्या करते हैं, अगर जैसे मैंने ये 3 ये डिसिमल नंबर है, मैं इसको 2 से बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा, क्या आएगा यहाँ पर, ये आपको 1 आएगा, और रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना, एम आई राइट? यस यस। तो इसको हम लोग लोएस्ट टू हाईएस्ट बिट में लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। ये कैसे होगा, हम लोग ये अभी ये पढ़ेंगे ना, ये वाला चैप्टर, दिस वन नंबर सिस्टम, इसमें आपको क्लियर होगा। तो इस टाइप से 1 1 आया। सिमिलरली अगर मैं 2 को कन्वर्ट कर रहा हूँ, इन डेट केस क्या होगा, ये वाला पार्ट के लिए इसमें क्या वैल्यू आ रहा है, 1 0, तो जैसे 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, इधर 1 टाइम्स में कोसेंट वैल्यू 1 हुआ और रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगा, 0 0 सर 1 होगा नीचे, ये नीचे 1 होगा और ऊपर 0 होगा, ठीक है। जब आप 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, आपका ये 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ, एक बार में आएगा ना, और रिमाइंडर पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो फाइनली आपने उसी को क्या लिखा है, 1 0 लिखा है। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। बाकी इसमें डिटेल्स में कल हम लोग आएंगे, फिर से देखेंगे। नोट्स में कहाँ तक लिख लिया था आप लोगों ने? नोट्स में कहाँ तक लिख लिया था? ये वाला पार्ट हो गया है ना, स्लाइड नंबर 4 तक? यस सर। देन आप लिखेंगे इसके बाद ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा लिखिएगा। मैं ये स्लाइड अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, ये पूरा पार्ट लिखिएगा। अच्छा, ये जो नोट्स लिखे थे ये कल के डेट में था ना, ये वाला पार्ट? यस सर। तो ये आज के डेट में ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखेंगे, एज वेल एज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरा लिखेंगे। स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4। बाकी डिस्कस कल होगा, मैं अभी जस्ट अपलोड कर दे रहा हूँ। एनी डाउट? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। ओके, सर थैंक्स फॉर, यस यस। सर नंबर सिस्टम आगे करने से अच्छा होगा सर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने जस्ट आज हल्का सा ब्रीफ दिया है ना, कल और क्लियर करूंगा तो हो जाएगा। ठीक है ठीक है। सर।